Jain students, hope you all are good. And again, I'm really sorry for this delay. Let's start this second part of the chapter Lost Spring. Before we start the second chapter, I want to ask that hope you are clear with this title. Like, because this question can be asked that talk on the appropriateness of the title, yeah, justify the title. So this Lost Spring is like the children who has lost their childhood, that means who has lost their happiness. Okay, so this can be asked. And now let's start the second part. Okay, the second part is about Mukesh. And Mukesh, I want to drive a car. This line, like this story starts with that he said that he want to drive a car. Now, Mukesh insists on being his own master. Okay, if you remember that Sahib who was a rag picker and then he got a job at tea stall, and then there he lost all his freedom and he was working under master, and now he was no longer his own master and he don't like that job. But this Mukesh, what he want to be, that he want to be his own master. The only thing he want to achieve, how, आई विल बी अ मोटर मकैनिक ही अनाउंस. उसने क्या कहा कि मैं मोटर मकैनिक बनना चाहूँगा इन फ्यूचर में, मैं बनूँगा और मैं क्या है किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ. Now what is his family background, like is this possible for him to do so, or he have to struggle? This we're gonna study. Do you know anything about cars? I ask. I again is a writer. तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता भी है? I will learn to drive a car. मैं सीख लूँगा. He answered, looking straight into my eyes. उसने क्या कहा कि मैं सीख लूँगा. Looking straight, that means he was very much determined that he will definitely learn. His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his own town फिरोज़ाबाद. अब जो उसके सपने थे, उसके जो ड्रीम्स थे, वो उसकी फिरोज़ाबाद की गलियों में एक मिराज की तरह, एक इल्यूजन की तरह लग रहे थे. बिकॉज यू नो he was maybe expecting something big from his life because he was living in slum areas. And yes, sorry for this inconvenience. Okay. Now Firozabad is famous for its bangles. Firozabad bangles के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass and मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. अब जो फ़िरोज़ाबाद में जो फैमिलीज़ रहती हैं, उन्होंने अपनी जनरेशन्स बताई हैं इस काम में, इस प्रोफेशन में, बैंगल मेकिंग में. और जितने भी वुमेन हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका जो बैंगल्स का सप्लाई है, दैट इज़ फ्रॉम फ़िरोज़ाबाद. नाउ मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. उनमें से मुकेश की फैमिली भी एक थी. नन ऑफ देम नोज़ that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. किसी को भी नहीं पता था कि ये बहुत इलीगल है कि छोटे बच्चों को जो ये है ग्लास फर्नेसेस इतने हाई टेम्परेचर में उनको काम करवाना, वो क्या है, कानूनी अपराध है. इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. वो जो बिल्कुल जहाँ पर बंद सेल्स हैं, जहाँ पर ना लाइट है ना वहाँ पर एयर है, that the law, if enforced, could get him and all those 2,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अगर laws strict है और उन वहाँ पर अगर अप्लाई किए जाएँ तो ऐसे 20,000 बच्चे होंगे जो कि जिन्हें वहाँ से फ्री कराया जा सकता है, जो कि वहाँ पर काम करके उस मतलब बोरिंग एक्टिविटीज़ में आप उनको, दैट इज़ अ बोरिंग जॉब फॉर देम, जो अपने पूरे जो दिन के जो घंटे हैं वो वहाँ बिताते हैं और अक्सर अपनी आँखें की रोशनी भी खो देते हैं. नाउ मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम. उसकी आंखें एकदम से चमक गई मुझे अपना घर दिखाने के लिए. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट. और उसने बहुत प्राउडली कहा कि हमारा घर क्या है, रीबिल्ट हुआ है, उसमें कुछ रेनोवेशन हुआ है. ओके, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज. जब हम जा रहे थे तो आई दैट दे
देयर वर स्टिंकिंग लेन्स, बहुत ही स्मेल आ रही थी जिनमें क्या है, दैट वर चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, बहुत ही बुरी कंडीशंस में थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, दीवारें मतलब बिल्कुल टूटने को हो रही हैं, दरवाजे बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं, नो विंडोज़, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in primeval state. ओके, जब ये इसका मतलब है कि जब पहले की बात करी जाए, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंसान हैं वो एनिमल्स के साथ रहा करते थे, वैसी उनकी स्टेट है, वो भी वैसे ही रह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक फैमिली में, वहीं पर एनिमल्स भी उनके साथ ही रह रहे हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के आगे वो खड़ा हुआ, एंड बैंग अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन, और उसने वहीं ऐसे एक दरवाजे पे धक्का मारा और उसे खोल दिया. ही एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, हाफ बिल्ड शैक मतलब जो अभी कम्प्लीटली नहीं बनी, एक झोपड़ी टाइप. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और उसका एक पार्ट है वो किससे कवर था, सूखी घास की छत से बना हुआ था. Dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर चूल्हा बनाया गया था और उसमें एक बड़े से पतीले में पालक उबाली जा रही थी जिसकी सुंदर सी खुशबू आ रही थी. On the ground in a large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family through eyes filled with smoke. She smiles. और वहाँ पर क्या था, एक फ्रील मतलब बिल्कुल मतलब चेहरा जिसका उतरा हुआ हो, एक वुमेन थी जो का खाना बना रही थी और बहुत धुआं था, बट शी स्माइल थ्रू दैट स्मोक, एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी. नॉट मच एल्डर in years, she has begun to command respect as the bahu and daughter-in-law of the house, already in the charge of 3 men. और वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट स्टिल छोटी सी उम्र में क्या है, उसे बहू, शी वॉज लाइक शी इज़ गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली, जहाँ पर वो बहू भी थी, किसी की डॉटर इन लॉ थी, एंड नाउ शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, तीनों को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस पर. Okay, when the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. और जब भी क्या था कि वो उनके बड़े घर के सबसे बड़े आते थे तो दीवार के पीछे झुककर घूंघट कर लेती थी पहले. As a custom demands, daughter-in-law must wheel their faces before male elders. और ये उनके कस्टम में था, उनके रिवाजों में था कि जब भी कोई बड़ा मेल वहाँ पर आए तो उन्हें क्या है, अपना जो है मुँह ढकना है. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. मगर इस केस में क्या है, जो एल्डर जो है, जो सबसे घर के जो सबसे बड़ा है, वो बहुत ही मतलब अभी मतलब ही वॉज वेरी पुअर बैंगल मेकर. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor and then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. और क्या है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, पहले जो वो टेलर था उसके बाद वो बैंगल मेकर बना, मगर पूरी लाइफ में ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मैन. उसने अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज सका, अपना घर जो है उसको रेनोवेट नहीं कर पाया, एंड ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम वॉट ही नोज़. और उसने अभी तक जो सिखाया था, वो जो उसे आता था, उसने वही अपने बच्चों को सिखाया था. दैट इज़ द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग बैंगल्स. क्या सिखाया था, टू हाउ टू मेक बैंगल्स. इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती कि ये शायद उसका कर्म, इट वॉज हिज कर्मा, who has watched her own husband go blind with the dust of polishing the glass of bangles. कि उसके ही कर्म थे, उसकी ऐसी किस्मत थी कि उसने अपने हस्बैंड को अंधे होता देखा है इस प्रोफेशन में, इस बैंगल मेकिंग में. एंड कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन. गॉड गिवन लीनेज मतलब जो उनके पूर्वज करते आए हैं, उन्होंने बहुत सालों तक, जनरेशन्स तक कहा किया है, तो ये तोड़ा थोड़ी ना जा सकता है. वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम ट्रेडिशन. She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house. और वो एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे जहाँ पर उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा है. उनके घर के आंगन में, पड़ोसियों के आंगन में, एवरीवेयर, लाइक they only had seen those bangles of different colors. Okay, I'm not reading this because it's not that important. Now,
ओके, अब यहाँ पर एक आयरनी है इस सिचुएशन में। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक लड़की है जो अपने एक लेडी की है, बहुत बूढ़ी लेडी, उसके साथ बैठकर बैंगल्स बना रही है। बट डज शी नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस बैंगल्स? सविता, अ यंग गर्ल इन अ Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like a tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. अब जब वो उसने एक लड़की को देखा जो वहाँ पर बैंगल्स बना रही थी, ऐसे जैसे काम कर रही थी जैसे मशीन चल रही है कोई, बट क्या उसको उन बैंगल्स की पवित्रता के बारे में पता है? इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन अ मैरिज, जो बहुत ही ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है शादियों में, और एक लेडी के लिए सुहाग माना जाता है उसका. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled on her waist. उसकी भी लाइफ में ऐसा एक दिन आएगा जब वो भी एक ब्राइड के रूप में तैयार होगी, and she is also wearing those bangles. She will become a bride, like an old woman beside her become one many years ago. जैसे कि उसके साथ में जो लेडी बैठी हुई थी बहुत पहले, उसकी भी लाइफ में ये टाइम आया था. तो कहने का मतलब क्या है कि जो लोग, जो कि बैंगल्स है, जो कि किसी के लाइफ में इतने ऑस्पिशियस होते हैं और इतने पवित्र माने जाते हैं, उनको बनाने के लिए someone has to sacrifice their life. And now she still has bangles, जो लेडी बैठी हुई थी, she still has bangles on her wrist, but no lights in her eyes. मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी. उसने अपनी पूरी लाइफ इस डार्कनेस में बिताई है, इस पॉवर्टी में बिताई है, एंड she was sad, she was not happy with her life. एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया है. she says, उसने क्या कहा कि उसने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक एक भी मील पेट भर के नहीं खाई. इन वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, जिसमें कोई भी खुशी नहीं थी. शी हैज़ नॉट enjoyed even a full meal in her entire lifetime. That's what she was. She has reaped. Her husband, and an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. और उसका जो husband है, an old man, जिसकी beard से उसने क्या कह रहा है कि मुझे भी बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता. All I have done is make house for the family to live in. मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक घर बनाया अपनी फैमिली के लिए ताकि वो रह सके. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed. उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसने जो अपनी लाइफ में किया है वो शायद बाकी वो भी नहीं कर पाए, घर भी नहीं बना पाए. At least he has roof over his head. उसके पास छत है. Now the cry of not having money to do anything except carry on business of bangle making, not even enough to eat rings in every home. अब जो ये है लोगों के जो दुख है, दुख भरी दास्ता है, that they don't have money to do anything in their life. It's the same in every house there. The young men echo the lament, और जो of their elders, जो उनके elders complain करते आए हुए थे, अब जो young men हैं they are also doing the same. echo the lament मतलब they are also complaining about the same thing. Little has moved with them it seems in फिरोज़ाबाद, और ऐसा लगता है कि बहुत कम बदलाव हुआ है, कुछ नहीं बदला है. Years of mind-numbing toils have killed all the initiative and ability to dream. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, जो दिमाग को और कुछ सोचने ही नहीं देती है, जिसने उनकी इमेजिनेशन को ख़त्म कर दिया है, उनके दिमाग को जकड़ लिया है, दैट वो कुछ और इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते और उनकी जो एबिलिटी टू ड्रीम है वो ख़त्म हो चुकी है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गोना स्टडी. Why not organize yourself into a cooperative? अब cooperative जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं they must have known this term, that cooperative क्या होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपने वेलबींग के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं for their economic social development. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. और वो उसने पूछा बहुत सारे जो वहाँ पर मेन थे, ग्रुप ऑफ मेन से, कि वो कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं. वो जो ये जो मिडल मैन है, जो लोग हैं, इनके शातिर से जो सर्कल में जो फंस गए हैं, वो एकदम ट्रैप हो चुके हैं. उनके फादर्स और उनके फोर फादर्स मतलब जनरेशन्स ने यहाँ तक काम किया है. तो वाई डोंट दे थिंक
to do something else. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम एक सोसाइटी बनाते भी हम मिल के कुछ करना भी चाहेंगे, वी आर द वंस हु विल हॉल्ड अप बाय द पुलिस. हमें क्या है, दोबारा पुलिस क्या है, फोर्स करेगी, वापस इसमें धकेल देगी, एंड बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उसे इलीगल बताकर हमें क्या है, मारा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा. दे से there is no leader among them, no one who could help them see things differently. हमारे बीच कोई लीडर नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और कोई कुछ अलग नहीं सोच सकता. Their fathers are as tired as they are. उनके जो fathers हैं वो भी थक चुके हैं इस चीज़ से जितने कि वो. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy. जो हमेशा वो एक सर्कल के बारे में बात करते हैं जो गरीबी से उन्हें कहाँ लेकर जाता है, सैडनेस, उदासीनता की तरफ लेकर जाता है. ग्रीड से कहाँ लेकर जाता है, इनजस्टिस. अगर वो कुछ और करना भी चाहे तो उन्हें सिर्फ क्या मिलता है, इनजस्टिस मिलता है. It's very important paragraph, please do read, and the language is very easy that you can understand it by yourself also, and I really want you to go through this chapter once, at least once. It's a request. Now, listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in web of poverty. ये उसकी बात कर रहा है. जब उसने सुना तो एक फैमिली वो है जो कि क्या है, इस पॉवर्टी के उसमें फंस चुकी है. एंड सेकेंड इज़ बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. स्टिग्मा मतलब जैसा कि एक सोचने का तरीका. उनकी कास्ट में क्या है, सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए ही, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते वो वहाँ के लोग. And the other is vicious circle of sahukars, the middleman, policeman, keepers of law and bureaucrats and the politicians. और ये जितने भी सरकारी जो हैं politicians हैं, चाहे policeman हैं, वो उनके शातिर सर्कल में फंस चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते. Together they has imposed the baggage on the child and he cannot put down. और उन सब ने मिलकर अपना जो बोझ है अपने बच्चों पर भी डाल दिया है, बिफोर ही इज़ अवेयर, और उसे वो अभी हटा नहीं सकते. और इससे पहले कि उन्हें पता चले दैट व्हाट दे आर डूइंग, नाउ ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर. और वो भी अब उसको क्या है, ऐसे ही नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे फादर ने जब ये किया है तो मुझे भी यही करना है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. और अगर कुछ और करना है तो उसके लिए मतलब तुम्हें हिम्मत चाहिए है. You have to be that daring, and daring is not part of his growing up. और daring उन्हें कभी सिखाया नहीं गया है. उन्हें सिर्फ क्या है, रूल्स को फॉलो करना सिखाया गया है, जैसा कि बड़े लोग कहे उन्हें. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैंने उसमें देखा that yes, that Mukesh is daring and he wanted to come out of this vicious circle. He don't want to do this for his lifetime. I want to be a motor mechanic, he repeats. उसने दोबारा कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He will go to garage and learn. वो जाएगा और सीखेगा. But the garage is a long way from his home. बहुत दूर था तो ही सेड आई विल वॉक. ही इंसिस्ट, मैं जाऊँगा वहाँ पर. ओके, डू यू ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. क्या तुम एक प्लेन भी उड़ाना चाहते हो. ही इज़ सडनली साइलेंट. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. उसने कहा नहीं. ओके, इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरसमेंट. yes, he was embarrassed of his poverty, you can say, but that has not yet turned into regret. मगर उसको पछतावा नहीं था. वो जिस circumstance में रह रहा था जहाँ उसने जन्म लिया था. but he is content to dream of cars. मगर वो उसने ही संतुष्ट था किसके बारे में, to dream of his cars that he sees hurtling down the street. जो कि उस अपने आसपास वो देखता था बहुत सारा, अपनी सिटीज़ में देखता था बहुत सारी कार्स को. few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद. कुछ थी जो फिरोज़ाबाद के आसमान के ऊपर से भी जाती थी. that means he knows his limit, but still he is a daring child and he wanted to be his own master, though he was born in a family of tradition, but he was a daring child. Now you can attempt the question answers. It's very easy. And yes, please do also this theme and justify the title. Okay, and please submit your assignments on time. That's a request.